सॉरी यार, हाई कमांड की तरफ से ऑर्डर आ गया था तो कोई बात नहीं जी, वो सब तो पहला है फर्स्ट हाई क्लास हाई कमांड का ऑर्डर फुलफिल ना हो तो फिर पता है मसला होता है। अच्छा जी, ये इससे पहले हर एक टर्म आपको आप क्लियर हो जानी चाहिए, ऐसा ही है? जी जी। अदनान भाई किधर गए हैं? अदनान भाई मेरा है नहीं। अदनान भाई नहीं आए अभी तक, आए थे चले गए, क्या चक्कर है? बाथरूम में गया उसने, आए हुए सन। जगपाल बाजी और मनदीप बाजी हाँ जी सर। इधर ही हो ना? हाँ जी हाँ जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ बैठे थे ਤੁਹਾਡੀ वेट कर रहे थे। सॉरी जनाब, मैं असल वाइफ ने बनाया से चने की दाल आज, तो अच्छा जी, नहीं ठीक है, कोई चक्कर नहीं है जी। उन्होंने कहा जी नान चाहिए, मैंने कहा ठीक है जी ले आके दे देते हैं, कोई मसला नहीं। ओके ओके। हाँ तो फिर नान लेने चला गया। ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦਾ ਓਕੇ। ਦਿਲਜੋਤ ਭਾਜੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਧਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। दिलजोत पाजी का अभी सुबह के 4 हो गए होंगे, 3-4 नहीं भाजी हले 2 ही बजे ने। चलो हले 4 बजा दो, 4 बज जाएंगे, 1 घंटा 4 हो बजा गया। दो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। अब अदनान भाई को कैसे बुलाएं? और ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀ ਦੱਸ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਦ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੇ। यूके ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ। यूके ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਯੂਐਸਏ ਦੀ 4 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ यूके ਦੇ 9 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਵੇਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰੀ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ 3 ਮਿੰਟ ਤੱਕ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਬਣੂ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ 9 ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ 12:30 ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ 9 ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ 6 ਵਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ, ਹਨਾ ਹਨਾ, ਤੇ 6 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ, 6 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਲਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ 6 ਵਜੇ ਹਨਾ, 6 ਵਜੇ ਵਧੀਆ। 6 ਵਜੇ ਦਿਲਜੋਤ ਵੀਰੇ ਐਨ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਨ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਔਖਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2 AM ਹੈ, 2 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ, फिनिश कितने बजे कर दो नवीद भाजी? मैं सुबह 9 बजे पहला ट्रेड, 9:02 में पहला ट्रेड ले लेता हूँ। अच्छा नहीं ट्रेडिंग मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਹੋਲ ਡੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नहीं मैं ऑल डे नहीं ट्रेडिंग करता। मैं कल एक मिसाल दी थी मैन ग्रुप ਵਿੱਚ, मैं ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਡੀਓ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੰਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ, ਮਸ਼ੀਨ ਔਨ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ या हफ्ते में? कितना टाइम लोगे? जितने बनाने जितना टाइम ला सो। ये तो फिर जुल्म हो गया ना अपने ऊपर। जिन्नी जरूरत होगी, जिन्नी जरूरत है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। so all you do is take few trades but quality trades। ਅਨਵੀਰ ਭਾਜੀ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ $20-25 ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ? ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਚਲੋਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਅਗਰ ਲਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸੈਂਟ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ 5 ਟ੍ਰੇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 20 ਸੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। और 20 सेंट वाले बहुत इतने बेशुमार ट्रेडर हैं। कल ते देखो लोगों ने $2-2 $3-3 प्रॉफिट बनाई है, ठीक है जी, परसों पिछला 3 हफ्ते 4 हफ्ते से ऐसी मार्केट जा रही है। लेकिन असं 20 सेंट और 1000 शेयर की गल कर रहे हैं, 20 सेंट 1000 शेयर 5 ट्रेड, ठीक है जी, ते 5 ट्रेड तुहाडे अगेंस्ट जान ते $700 तुसी रोज का प्रॉफिट बनानी है। 700 ना बनाओ तुसी 400 बनाओ रोज की,
400 ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ 20 ਦਿਨ 400 ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਇਹ 3000 ਤੋਂ 5000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ 400 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 8000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 25000 ਦਾ ਲਾਸ ਕਵਰ ਕਰਨੇ 3 ਸਾਢੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਸ 3 ਸਾਢੇ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ 400 ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ 200 ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਉਹ 200 ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 200 ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 400 ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ ਰਾਈਟ ਬਾਤ ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਅਸੂਲ ਹੈ ਓਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਟ੍ਰੇਡ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈਜਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2:02 ਤੇ ਜਾਂ 402 ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈ 402 ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਉੱਠਿਆ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਾ ਕੈਂਡਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 90% ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨ 5 to 6 ਕੈਂਡਲਸ ਤੁਸੀਂ 2000 ਡਾਲਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਪਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਰ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ 2000 ਡਾਲਰ ਹੈ ਡੇਲੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਦਫਾ ऐसा होना है कि मेरे को 1200 बनता है कई दफा मेरे को 1000 बनता है पर कोई ऐसा दिन होता है जिसमें मेरे 4000 बन जाना ठीक है सो कवर हो जाना पर ऑन एवरेज मेरा 2000 डॉलर जो एवरेज है तकरीबन 60 to 70 वीडियो मेरी लाइव ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ YouTube ਤੇ ਹੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਓਕੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਤੇ ਇਹ 402 ट्रेडिंग ओके ओके हाँ जी अच्छा जी अब हम आते हैं सॉरी I got one question. You know, some of these brothers here, they've already traded and lost money and they've got that experience, but somebody like me, I've not traded. I'm blank canvas. You're blank canvas and you So are they a better position or am I a better position or we both you're okay? better position I think you are better positioned, but after taking this course and so far what you have learned, okay, you wouldn't just be shooting in the dark, right? Okay. Or will you be? No, I'll be following the rules of you setting out. You would know where demand is, where supply is, and you would be making decision based on what your chart is telling you. Yeah. But I believe that Adnan bhai, Balwinder bhai, Diljot bhaji, Mandeep or Jagpal bhaji, or Asif bhai, prior to this point, they either knew or they didn't know where to take trade and where to sell or where to come off. Exactly. Okay, and that is the worst situation you want to be involved in. Honestly, you don't want to be involved. It's not a good situation. You At must least know. they had the lessons. At least they had the hard lessons. Oh yeah, of course. You must know when is the right time to walk away. Okay, and of course, I mean some of the points are clear now, and most of them will be clear after we obviously first and second day. Tomorrow, most of the things will be clear. Inshallah. Okay, so moving averages. What is a moving average, guys? trending Anybody else? What is a moving average? Oh no. Anybody know what a moving average is? No. Okay, that's fine. No problem. Okay, so basically, it's the whole word you can say is moving average price. That is the true wording for it. Moving average price. Yeah, and as the name says, moving average price. What happens is each average you add, it is over number of period. So do you remember when we added these 3 averages? Who remembers this? Yes. When we set our platform, we have added moving average simple SMA 9, moving average VWMA volume weighted, moving average 20,
and we added EMA, exponential 50, moving average 50. Do you remember Yeah. that when we added Yes. that? Yeah. You see, the number is the day, is the number of days. Okay. All The right. numbers, the days, like the Number of 9 days. and 20, 50. So number of days this moving average is calculated. Oh, right. Okay. Because it's an average, right? So what is an average? Average is you add X number and then divide by the number of X's you add. So if I say 3 plus 5 plus 6, what is the average for them? How would you That's find all the when average? divided 100. How would you get the average? What is the way you calculate the average? Anybody? How do you calculate the average? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ, Multiply by 100. ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ 3 plus 5 plus 8, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 3 ਤੇ। क्यों 3 ਤੇ ਕੀਤਾ? 1 2 ਤੇ 3 ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਵਰੇਜ ਦੀ? 5 ਤੇ 8 13, 13 3 16, 16 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ 3 ਤੇ 5.3 ਤਕਰੀਬਨ 5.3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ? ਠੀਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 9 ਦਿਨ ਦੀ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਹੈ 1 2 3 4 5 6, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 9 दिन पर जाके उन्होंने 9 पर डिवाइड करने किस तरह कैलकुलेट करनी है? फार्मूला क्या? you don't need to get into detail, but understand that the number is here days, and then it will give you a price what you need to keep in mind when you're day trading. So let's say SMA 9 right now is $8.78. Yeah, at current right now is that, yeah. VWMA 20 is $8.65. Okay. EMA is $8.77. Okay. So these are 3 different moving averages calculated based on different parameters and indicators. We don't need to get into the detail of it. The main point is how we are going to use them to take a trade. Are we clear? So jada number nazar aa raha, based on that number how we are going to trade, how we are going to use moving averages to take trade. Let's say for example yellow color di line hai na, yellow color di line nazar aa rahi tonu? Yeah. जी। ये moving average है। Yeah. पर्पल कलर दी लाइन है SMA 9 है, रेड कलर दी लाइन है VWMA 20 है, ठीक है, इतना सबको समझ है? हाँ जी। Yeah. सॉरी मेरी ग्लासेस और मेरी आंखों में दर्द शुरू हो गया, मैं सोचा मेरी ग्लासेस एक सेकंड में मेरा ग्लास कर लिया। Okay, Ji. So I'm going to ask a question. Do you remember when I mentioned the types of support and resistance? कड़ी type ने support and resistance दिया? Types. वो जो ना ABC वाली है एक चैनल है वो वाली? नहीं उसे सुन नहीं रही था, मतलब है। हाँ जी। So moving averages can be support and resistance. So type of support and resistance: moving averages, trend lines, horizontal lines, and psychological support and resistance. horizontal line and Okay, let me pull up this one. Where is it?
So you have types of support and resistance. Horizontal lines, you have moving averages, you have trend lines, and you have psychological support and resistance. Everybody understands this? Psychological support and resistance is $50 and $1. Whole dollar and $50. Okay? Trend line is trend line when it's at the bottom of the candle. When candle is above the trend line, then trend line is support line. ट्रेंड लाइन अगर कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो वो क्या है? रेजिस्टेंस। डिस्टेंस। नो। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन है और ये कैंडल है, ये कैंडल है और ये ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन अगर नीचे होगी कैंडल के तो क्या होगी? कोई भी चीज जब नीचे होती है किसी चीज के तो वो क्या है? Support. है। ठीक है? So if trend line is below the candle, that's support. That is support. If trend line is above, that's resistance. Above, then it's resistance. Resistance. Clear है जी ये चीज? जी जी। So trend line can be resistance or can be support. ठीक है? जी We clear? यहाँ तक clear सबको? clear. Okay, अब आ जाते हैं horizontal line पे. Horizontal line can be support, ठीक है जी, or resistance. ठीक है जी? Yes? So अगर horizontal line is below the candle, वो क्या है? Support. Support है. अगर horizontal line is above the candle, then वो क्या है? Resistance. Resistance. यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? नहीं. ठीक है जी? So इस कैंडल के लिए ये वाली लाइन जो है, रेड लाइन जो है, ये रेजिस्टेंस है और ग्रीन लाइन जो है वो क्या है? सपोर्ट है. Support. ठीक है? और क्लियर गाइस? Yeah. ओके, अब मैंने कहा कि मूविंग एवरेजेस कैन बी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. या तो अब मुझे ये बताएं, इस कैंडल के लिए, दिस कैंडल हियर, राइट हियर, एवरीबॉडी कैन सी? Yeah. जी कैन यू टेल मी इफ VWMA इज सपोर्ट और रेजिस्टेंस? resistance. Guys, I need everybody to speak up and tell me if you know it. Resistance. It's a support. Can you tell me if VWMA for this red candle and green candle and this red candle, is it a resistance or support? Resistance. Pure resistance. Why is it a resistance? On top of it. Yeah, बात है ना कि Exactly, candle because candle is below that line. Candle is Line. below this red line, right? Everybody, सब लोग clear है यहाँ पे? जी But जब ये भी- red candle, जब भी ये लाइनें जो आपने ये 3 लाइनें ऐड की हैं ना, जब भी जी। ये कैंडल के ऊपर होंगी तो वो होंगी क्या? रेजिस्टेंस. resistance. जब भी वो कैंडल के नीचे होंगी तो वो होगी सपोर्ट. Support. ठीक है. सब लोग को समझ आ गई ये बात? जी 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 ठीक है. तो आप मुझे बताएं कि यहां से लेके यहां तक EMA सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है? Support EMA और 50. resistance. Guys, EMA 50 is this yellow line. EMS support है सपोर्ट है क्योंकि ये कैंडल से नीचे। नीचे है. नीचे. जी ठीक है जी. Yellow one. अब एक और सवाल कि SMA 9 विच इज पर्पल लाइन, अब मुझे ये बताएं कि यहां तक सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है? थोड़े भाई Support. यहाँ सपोर्ट है तक क्योंकि support है. कैंडल के नीचे है. जी. ठीक है. अब यहाँ पे ना ये सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस, बिकॉज
ये थ्रू जा रही है कैंडल्स के, तो क्या हम इसके ऊपर रिलाई करेंगे इस एरिया में, यहां से लेके यहां तक? नहीं, पर्पल पे नहीं करेंगे, पर्पल पे रिलाई नहीं करेंगे। क्यों? नहीं करेंगे। कि स्टॉक इज गोइंग थ्रू दैट लाइन, लाइन इज गोइंग थ्रू द स्टॉक, ठीक है। तो फिर हम किस सपोर्ट पे रिलाई करेंगे? Red one. येलो एंड रेड, रेड येलो थ्रू जा रही है, रेड थ्रू जा रही है। जी, येलो नहीं, येलो भी नहीं, अभी येलो नहीं। यस, येलो करेंगे। देन जो The line आपने is that हमने you खुद made. बनाई है, अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो ग्रीन वाली है और रेड एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ठीक है जी, ग्रीन लाइन, ठीक है जी। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जो आप चार्ट देख रहे हैं, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढनी है बेस्ड ऑन व्हाट योर चार्ट इज टेलिंग यू, वेदर नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज EMA, VWMA, SMA और हॉरिजॉन्टल लाइन और साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। बात समझ रहे सारे बंदे? हाँ जी। क्या? सो जब एक कैंडल फॉर्म हो रही है तो आपने अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या जो क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल है या 50 EMA है या VWMA है या SMA है या होल्ड डॉलर और हाफ डॉलर है, या ये सारी है। कोई ऐसी सिचुएशन होगी सारी ही होंगी या ज्यादा होंगी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा जो है ना वो क्रॉस हो रही होंगी, पर करें वहां पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, वहां पे आपकी EMA भी मैच हो रही है, वहां पे आपका जो है ना वो होल्ड डॉलर भी मैच हो रहा है, तो 3 तरह की सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उस एरिया में जहां पे 3 सपोर्ट होंगी? बिल्कुल है भाई। एब्सोल्युटली। क्या? तो जितने लेवल ऑफ सपोर्ट्स एक जगह पे मिलेंगे एक ही प्राइस जगह पे, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, ठीक है। और वहीं पे आपकी एंट्री है, ठीक है। एक चीज, अभी ये हम दोबारा वापस उस टॉपिक पे गए हैं जो पहले हमने ऑलरेडी ये कंप्लीट कर लिया हुआ है, लेकिन चलें, अब मुझे लगता है कि काफी आपको इसके बारे में क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया है कि अगर ये स्टॉक के नीचे हूं, कैंडल के नीचे हूं, तो इसका मतलब है कि स्टॉक सपोर्ट के ऊपर है और हम यहां से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। एंट्री के ऊपर बाद में आएंगे, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि नीचे होंगी अगर कैंडल से तो स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्टॉक कैन होल्ड स्ट्रॉन्ग। अगर ऊपर होंगी तो स्टॉक हैज इट्स अ फ्री फॉल, ठीक है। तो जब स्टॉक में फ्री फॉल होगी और नीचे कोई सपोर्ट नहीं होगी तो कैच कहां पे होगा स्टॉक को पता है किसी को? कोई पता नहीं, ठीक है। तो वो स्टॉक थोड़ा सा डेंजरस है, वहां पे आपने अपने यू नीड टू होल्ड एवरीथिंग। 1 second please. What's the lowest the stock can go to? Zero. Will it Yeah, go zero, minus? zero, zero, yeah, zero. Zero. Okay. Okay, अब आती है RSI. RSI probably is the most important indicator you would ever know. It's very 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 important. Yeah. RSI का मतलब है, RSI basically is a relative strength index. ठीक है जी? RSI is relative strength index. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का जो रेंज है वो 0 से लेके 100 तक है, ठीक है। RSI रेंजेस बिटवीन 0 to 100, ओके। और उसके 2 माइलस्टोन्स हैं, एक है नंबर 30 और एक है नंबर 70। तो 0, 30, 70 एंड 100, ये 4 नंबर्स हैं जो आपने ज़हन में रखने इसके, ठीक है। 0, 30, 70 एंड 100, ठीक है जी।
अब इन चारों पॉइंट्स में से भी दो चीजें आपने सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है हर वक्त। जब भी स्टॉक की RSI बिलो 30 होगी, ओके, जब भी स्टॉक की RSI बिलो 30 होगी, दैट स्टॉक इज ओवर सोल्ड। What's the numbers again? 0, 30, 0, 30, 70 and 100. 100. And 30 is oversold. Below 30. Below So if, 30. if stock is below 30, that's oversold. And that's on 5-minute or which minute chart we talking It about? doesn't matter. It depends on which chart you're using to trade. Actually, the other day, me and Narek, we were playing on IFA, IPHA. It was pretty good. So RSI on 5-minute, 15 and 30 or 1-day chart, it was like at above 80 or almost at 90. In the 1 minute, it was dropping. So which one should we consider at that time? Okay, sorry. Let's talk about it. First, let me explain what's what, and then we'll come to it how we can basically, and we'll talk about this particular stock. So guys, Sure, for those who don't know, if stock is below 30, it's oversold. Yeah. And if stock is above 70, it's overbought. Above 70? Above 70, it's overbought. And below 30 is oversold. Overbought? Yeah. Below 30, oversold. Above 70, overbought. Over? समझ नहीं आती? Overbought. Buy. Overbuy. Right. ठीक है जी? जी sir. अच्छा, सवाल ये उठता है कि why do stocks get oversold? Oversold. Bearish. No, why he meant? Why it gets oversold? What could be the reason? When everybody jumps on them and buying. Well, that should be overbought. तो when there is a panic, why Oversold. जब पैनिक होता है, यहाँ कोई न्यूज आती है तो यहाँ रेजिस्टेंस पे चला जाता है. Oversold. Oversold is Oversold. How it actually gets oversold? That should be the question. How? So when this is how it happens, yeah. Number one, when sellers sell, and short to sell as well. shorters sell, yeah. Oh, When short. sellers sell, shorters sell, and there is no buyer, price keeps getting oversold. It gets below 30. Okay. पर मैंने सौखी भाषा समझाओ. अच्छा जी, जदों ने तुसी जदों ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਓਵਰਸੋਲਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Demand ਘੱਟ ਹੈ ਜੇ. ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ. ठीक है. Oversold. अगर हम इसको अगर हम चाहें तो इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, या मुझे इसको सिंप्लीफाई करने थे, क्योंकि हमने लेना है ट्रेड. ठीक है. हाँ जी. तो हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं कि अगर तो ये बिलो 30 है तो इट्स ओवरसोल्ड. ठीक है. अगर इट्स अबव 70 तो इट्स ओवरबोट. ठीक है. ठीक है. ठीक है जी. जी. अब सवाल ये है कि जब कोई चीज ओवर बाय हो जाती है, ठीक है जी, तो फिर क्या होता है? प्राइस गो डाउन. प्राइस देखिए, फॉर एग्जांपल को बंदा है जिसकी जरूरत ही 100 ग्लासेस की थी, ठीक है जी, तो उसने बाय कर लिए 1000, तो 100 तो शायद वो बेच सके प्रॉफिट पे, लेकिन बाकी जो 900 होंगे उनका क्या होगा? वो नुकसान भी बेचेगा. बिल्कुल, प्राइस कम करनी पड़ेगी जी. और फिर दूसरी बात ये है
कि जब इतने ज्यादा वो बेच देगा तो क्या बायर्स मार्केट से कम नहीं होंगे? कम हो जाएगी, रोल पे आ जाएगी। ठीक है जी, मार्केट से बायर्स निकल जाएंगे। जब मार्केट से बायर्स निकल जाएंगे तो प्राइस इज गोना प्लमेट, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी प्राइस ड्रॉप होगी। ठीक है, और अब क्या होगा, अगर शॉर्टर्स ने भी बेच दिए हैं, शॉर्टर्स ने शॉर्ट कर दिया है, तो प्राइस फर्दर डिप करेगी, जिसकी वजह से स्टॉक जो है ना क्या हो जाएगा, ओवरसोल्ड की टेरिटरी में चला जाएगा। ठीक है, जब ओवरसोल्ड की टेरिटरी में चला जाएगा तो ज़ाहिर है जब कोई चीज ओवरसोल्ड हो जाएगी, इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि फर्ज करें एक बंदा जिसके पास सिर्फ 100 गिलास हैं, तो उसके पास ऑर्डर आ गया 1000 गिलास का, 1000 तो उसने बेच दिए, ओवरसोल्ड दिए ना किस्म का जी। तो जब ओवरसोल्ड होगा तो वो 1000 में से 100 जो उसके पास है वो तो है ही है, लेकिन बाकी 900 को कैसे पूरे करेगा? फिर कहीं और से वो खरीद लेगा बाइक। हाँ जी, खरीदेगा। ठीक है, सो जब स्टॉक ओवरसोल्ड हो जाता है तब डिमांड बेसिकली एक्चुअली बनती है वहां पे। ठीक है, और जब डिमांड बनती है तो वो डिमांड कहीं ना कहीं से पूरी तो होनी है ना। ओके, तो एक स्टॉक $10 पे ट्रेड हो रहा था, ठीक है, $4 पे आ गया है, ठीक है, एंड इज शोइंग ओवरसोल्ड, तो होगा क्या, एक तो उसमें 3-4 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, इट्स डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है जी, उनको पता है, अगर आपको पता चल जाए कि ये वाला ग्लास जो है ये आप $10 का परसों बेच सकते हैं और आज आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है $4 का खरीदने की, तो आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? डेफिनेटली खरीदेंगे। खरीदेंगे। ठीक है, तो जब भी स्टॉक इतना प्लमेट करता है ना, वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाता है, दैट मींस बिलो 30, और ये सबसे बड़ा सिग्नल होता है बायर्स के लिए टू जंप इन द मार्केट एंड गेट दैट डील। अच्छा, ठीक है जी, तो जब भी स्टॉक ओवरसोल्ड होगा, बिलो 30 होगा, तो इट्स अ बाय जोन। ठीक है जी, इट्स अ डिमांड जोन। ठीक है जी, ठीक। और जब भी स्टॉक ओवरबोट होगा, अबव 70 होगा, तो इट्स अ सप्लाई जोन और सेल जोन। ठीक है जी, जैसे अगर मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताऊं, तो अगर मैं कहूं कि जी दिस एरिया इज सपोर्ट, ठीक है जी, एंड दिस एरिया इज रेजिस्टेंस। ठीक है जी, अब ये है सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। अब अगर स्टॉक की प्राइस जाती है यहाँ पे, फर्स्ट करें यहां से जा रही है स्टॉक की प्राइस ऊपर, ठीक है, यहाँ पे टच हो जाती है प्राइस, ठीक है, या इससे थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, ठीक है, और RSI शो कर रही है 78, RSI 78 शो कर रही है, ठीक है, और प्राइस है ये $10, ये $9, और RSI शो ये तकरीबन $10.50, ठीक है जी, $10.50, और $10.50 पे RSI शो कर रहा है 78, ठीक है। ओके जी, तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक इज ओवर बोट। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, ओवरबोट, सॉरी ओवरबोट। ओवरबोट जी,
यहाँ पे हो क्या सकता है, यहाँ पे सेल हो सकता है। सेल हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेल Overbought है। जोन है, जी ठीक है जी, ऑलरेडी सप्लाई जोन है। ठीक है सर, और यहाँ पे सपोर्ट। तो अगर ये सेल जोन है, रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन है और RSI 78, तो मोर लाइकली यहां से प्राइस वापस Down. रिटर्न होगी, ठीक है, रिटर्न होगी। और अगर प्राइस जाती है $8 पे या $8 और 80 सेंट पे, ठीक है, और RSI शो कर रहा है जी 25, तो इसका मतलब क्या है, ये बाय जो है ओवरसोल्ड। बाय जोन ओवरसोल्ड, बाय जोन, ठीक है जी, जी और डिमांड जोन, ठीक है जी। सब कुछ क्लियर है ये? जी जी तो मुझे बताएं कि अगर स्टॉक सपोर्ट के नजदीक है, ठीक है, और ओवरसोल्ड है, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है? हाँ जी, जी है। बिल्कुल बिल्कुल है। ठीक है जी, जी है। तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल सर, ठीक है। अब हम आते हैं IPHA, क्या टाइम था सर? मॉर्निंग आवर्स, प्री मार्केट आवर्स में था। प्री मार्केट आवर्स में प्राइस की रेंज क्या थी, कहां पे था, किस चार्ट की बात करें आप? 7 बजे के करीब होगा भाई। चार्ट कौन सा था? 1 मिनट। 1 मिनट पे, ठीक है, तो 1 मिनट पे यहाँ पे ये देखे ना, अगर 9 है, इससे पहले पता नहीं मैं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता। 2 मिनट 7 बजे के करीब होगा। तो ये 7 है, ठीक है, 7 बजे 2 मिनट पे तो होता है 1 मिनट है, 1 मिनट पे चेंज करता हूँ इसको। तो 7 बजे ओवर सोल्ड नहीं था स्टॉक, तकरीबन 8:30 बजे ओवर सोल्ड था। हाँ जी, ओके 8:30 बजे ओवर सोल्ड था, एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज 8:30 बजे। RSI क्या है यहाँ पे जी, ये नीचे जो सबसे नीचे है, ये आपको क्या नजर आ रहा है जी? 25 है। सबसे नीचे RSI के आगे 24.994. 13 पॉइंट कुछ 11 पॉइंट कुछ है। अब तो है ना, the bottom one, that's 25 almost. 25 है, 24.99 तो ये ओवरसोल्ड है या ओवरबोट है? ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड है। तो अब इसके बाद देखिए, प्राइस बाउंस, प्राइस पुश डाउन हुई है, लेकिन अगर आप कैंडल की सिचुएशन देखें ना, पर इस टाइम फ्रेम पे मुड़ के दोबारा आते हैं तो अब ये देखिए, ये वाली कैंडल है, ठीक है, कितनी फास्ट इसके नीचे विक बनी है, ठीक है, ये 1 मिनट का चार्ट है हालांकि, ठीक है जी। सो प्राइस इसकी कैंडल की लो क्या थी, $6.79, हाई थी 743 और ओपन हुआ ये 743 पे, ठीक है जी, और क्लोज हुआ 725 पे। लेकिन चूंकि ओवरसोल्ड था स्टॉक बाउंस्ड बैक, जैसे ही ओवरसोल्ड हुआ बायर्स जंप्ड इन, ठीक है, और उसके बाद देखें आप कि प्राइस कैसे जो है ना वो ऊपर गई है। और लेकिन दूसरी बात और चीज है, ये यहाँ पे प्राइस गई है, देखिए किधर गई है, प्राइस नियरली $12 पे थी, ठीक है। अब इस कैंडल के ऊपर अगर आप जाए ना 9:51 पे, 9:51 ये है, ठीक है, तो RSI क्या थी 89, तो दिस इज वे ओवरबोट, ठीक है। कितने 89 कितने लिखा? पाजी जरा छोटी जी विंडो खुली है, सारे नीचे जाके देखो ना, ਜਿੱਥੇ ਮਾਊਸ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆ डब्बा ਜਾਣਾ जरा बनता ना, डब्बा बनता जरा, ए डब्बा
खुलता डब्बा नजर आ रहा जी ਇੱਥੇ तो आखिरी फिगर 41 ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ नहीं 41 नहीं ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ हाँ ਹੈ ठीक जी 89 भी ठीक हो गया ठीक है। RSI लिखा आ रहा है, ठीक है जी, RSI, ठीक है जी, बिल्कुल bottom है। RSI 89 होगी, ऑलमोस्ट 90, ठीक है जी। ਕਿੱਥੇ 89 ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। सब तो थले लाइन जो भी थले बॉक्स की लाइन थले ਉਹ ਭਾਜੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬਾਕਸ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਬਾਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੀ ਇਹ ਬਾਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਕਸ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ? PRC ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ? PRC ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕੇ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਚੈਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ RSI ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। अच्छा छो जी, नजर आएगी तो छोड़ोगे ऐसे जान, वैसे ऊपर करा दो, दूजे वाले तो करा दो। हाँ जी कोई मसला नहीं। ये देखो 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 हुन दसना मैनू क्या लिखा है, दसो बलविंदर भाजी जेड़ा निक्का बॉक्स खुलिया इहदे सब नालों नीचे क्या लिखिया? सब तो नीचे छोटा छोटा नजर नहीं आ रहा और मैनू क्लियर नहीं दिस रहा। हाँ पर वो ही RSI है ना। चलो ਤੁਸੀਂ RSI ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ RSI ਬਸ ਤੱਕਣੀ ਹੈ ਕਿ RSI ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ बेसिकली मकसद है कि ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ कि RSI ਕੀ है। पॉइंट है जी, पॉइंट ये है कि जब RSI इतनी स्ट्रेच कर गई है, 90 पे चली गई है, तो स्टॉक के साथ क्या हुआ है? उसने नीचे ही आना फिर प्लमेट हुआ है स्टॉक। देखें जी कैसे प्लमेट हुआ है स्टॉक, ठीक है, ओके जी ठीक। उसने ये सपोर्ट भी तोड़ी है SMA 9, फिर उसके बाद उसने VWMA की सपोर्ट तोड़ी है, फिर यहाँ पे EMA को थोड़ा सा उसने होल्ड किया थोड़ी देर, 1 2 3 4 5 मिनट तक होल्ड किया उसने, फिर ये भी तोड़ी है, ठीक है, और फिर इसके बाद EMA 50 के नीचे रहा है स्टॉक थोड़ी देर, ठीक है। हाँ लेकिन पॉइंट ये है कि आप RSI को कैसे इस्तेमाल करेंगे टू गेट इन अ ट्रेड एंड टू गेट आउट अ ट्रेड। जब ओवरसोल्ड हो तो इट्स अ बाय, जब ओवरबोट हो तो इट्स अ सेल। ठीक है ठीक है जी। Overbought is sell. नहीं हाँ, ओवरबोट सेल, ओवरसोल्ड बाय। मेरे चार्ट ते ना मैनू एक ग्रीन कलर की लाइन नजर आ रही तो नीचे सर ओवरसोल्ड बाय कि सोल्ड सेल? ओवरसोल्ड बाय ओके ते ओवरबाउट सेल, ओवरबोट जरा सेल, ठीक ओवरबोट सेल, ठीक है जी। सबको क्लियर हो गया जी? जी जी वीर भाई ग्रीन लाइन का दिया है एली। हाँ तो मैंने RSI की दो लाइनें बनाई है, रेड कलर की जो ये 70 है और ग्रीन है जो 30 है। ये कैसे आएगी भाई? ये अगर आप इसको क्लिक करेंगे ना, ये जो यहाँ पे वॉल्यूम नजर आ रहा है ना, प्राइस, ये लेफ्ट साइड पे, हाँ इनको डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, हाँ और ये आपने RSI इधर ऐड की हुई है, हाँ की हुई है हाँ। तो उस दिन हमने किया था ना सर, ये लाइनें बनाई थी। ये RSI को डबल क्लिक करेंगे तो शो ओवर सोल्ड लाइन, शो ओवर बोट लाइन, तो ओवर बोट लाइन, ओवर सोल्ड लाइन जो है वो 30 है और कलर मैंने उसका ग्रीन दिया है, ओवर बोट लाइन 70 है और उसको मैंने कलर रेड दे दिया है। हाँ मेरे हुआ लेकिन शो नहीं हो रहा, आई हैव नो आईडिया क्यों शो इसलिए नहीं हुआ कि वो अगर स्टॉक ओवर सोल्ड नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, नजर आएगी वो उस टेरिटरी। आप देखें ये नहीं नजर आ रही अब, ठीक है। क्या जूम आउट कर लिया ना, ਜਦੋਂ जूम इन या जूम आउट कर लिया फिर वो लाइन गायब हो जाती है नवीद भाई। वो लाइन गायब हो गई है, क्योंकि अगर वो ओवर सोल्ड होगा तो फिर ये लाइन नजर आएगी, या उस लाइन के करीब जा रहा होगा तो फिर ये लाइन नजर आएगी, और फिर मुझे इंडिकेशन मिल जाती है कि मैंने यहाँ पे क्या करना है, बाय करनी। बाय जी जूम आउट करके भी होनी है लाइन, अदरवाइज आउंदी नहीं गई। नहीं आ सकती है अगर आ रही है मंदी फिर, अगर उस टाइम फ्रेम पे, अगर इस टाइम फ्रेम पे जो मुझे नजर आ रहा है ना,
हाँ जी, इस टाइम फ्रेम पे कहीं पे भी अगर ओवरसोल्ड हुआ ना स्टॉक तो वो मुझे नजर आ जाएगी। ओके फिर आओगी, ठीक है, ओके जी। ठीक है, हाँ क्योंकि जी, अभी जो मुझे स्टॉक जो प्राइस नजर आ रही है, जो चार्ट के ऊपर नजर आ रही है, उसके ऊपर ओवरसोल्ड नहीं है स्टॉक, तो मुझे नजर नहीं आई। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, और चूंकि यहाँ पे ओवरबोट हुआ है स्टॉक इस जगह पे, तो इसलिए मुझे ये रेड भी नजर आ रही है। गोचा। अब मैं अगर इसको मूव करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, अब वो रेड वाली भी गायब हो गई है। हाँ जी, ठीक है, क्यों? कि जो मुझे चार्ट नजर आ रहा है उसके ऊपर ओवरसोल्ड या ओवरबोट हुआ ही नहीं है स्टॉक। वो ही नहीं है। ठीक है जी, सर, ठीक है। सो ये आईपीएच का क्लियर हो गया। जो कल आप क्या कंफ्यूजन क्या थी, मुझे ये समझ नहीं आई है। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਡਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ। देखें बात ये है कि आपने 2 टाइम चार्ट आपने यूज करने, 5 मिनट और 1 मिनट। ठीक है, बस ठीक, जिस पे भी आपको ओवरसोल्ड नजर आया वहां पे स्टॉक बाउंस होगा उस बस चार्ट फ्रेम के ऊपर। ओके, ठीक है, हो गया जी क्लियर ये? जी आरएसआई किस किस को कंफर्म है कि क्या है और क्यों ये जरूरी है, और इसके ऊपर हम ट्रेड लें तो कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेड बनता है वो? कोई बंदा, कोई जवान ऐसा हो? अच्छा जी, हम यहाँ पे दोबारा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है जी, ये स्टॉक सेल ऑफ हुआ, ये तो देख रहे हैं जी 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 और आरएसआई क्या नजर आ रही है? 55 क्या नजर आ रही है सर? 25 25। तो उसके बाद देखिए स्टॉक के साथ हुआ क्या है। 25 पे $8.31 पे था और स्टॉक सीधा अगले 2 कैंडल पे, 1 मिनट का चार्ट है ये सर, 1 मिनट का चार्ट। सो अगले 3 मिनट में स्टॉक $9 पे चला गया है। ये कितनी प्रॉफिट है? 70 सेंट है। 7 $8.30 से लेके $9 तकरीबन 7.5 की कितनी प्रॉफिट कितनी बनती है ये? 70 सेंट। 70 सेंट प्रॉफिट। जी quite a bit. सो तो अगर यहाँ पे आपने इस स्टॉक को लिया है आरएसआई की बेस के ऊपर, 830 के ऊपर लिया है, ठीक है, $8,300 आपने खर्चा किया है 1000 शेयर के ऊपर, यही बात है ना? हाँ जी, और 3 मिनट के अंदर आपने $700 बनाया है, तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए नहीं करना चाहिए 3 मिनट के अंदर? obviously so the question is, since it's like all the EMAs is below the EMAs and everything, so we don't have to really consider at that time, right? नो, बिकॉज मैंने जब वो फुटबॉल वाली एग्जांपल, किसी को याद है? हाँ जी, हाँ जी, याद है, हाँ जी, मैं ये वो समझ गया। फुटबॉल वाली एग्जांपल है यहाँ पे। got it. ठीक है, फुटबॉल वाली एग्जांपल किसी को याद है क्या है? ये यहाँ जी, से जी। मारेंगे तो ऊपर जाएगी। हाँ जी, ये तो ऊपर नहीं, जब हम फर्स्ट फ्लोर से फुटबॉल को छोड़ेंगे तो जमीन को जब वो टच करके बाउंस होगा कि नहीं होगा? होगा। बेशक वो उस लेवल पे दोबारा शायद ना जाए, लेकिन एटलीस्ट वो हाफ वे थ्रू जरूर जाएगा। ठीक है, और ये ट्रेड आपको बहुत दफा मिलेगा, बहुत दफा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जी, यहां पे दोबारा आरएसआई कहां पे चली गई है? 27 पे। जी ठीक है, अब जब 27 पे गई तो ये 30-40 सेंट का आराम से ट्रेड बनता है। 33 पे आप 35 पे अगर ट्रेड ले लेते हैं आरएसआई की बेस पे, और ये गया है अगले 4 कैंडल में 57 पे, तो ये 20 सेंट का ट्रेड है, ऐसा ही है जी और 1000 शेयर अगर आपने दोबारा ले लिया तो 700 पहले और 200 ये, कितना हो गया? 900। 900। ठीक है जी, अब हम आते हैं दूसरी एक स्टेट के ऊपर। ठीक है, कि अब ये क्या है, ये चीज जो है, ये पॉइंट जो है 830 या 828 क्या पॉइंट है? क्या आपको इसको आप क्या कंसीडर करते हैं अभी? सपोर्ट, क्योंकि प्राइस इस लेवल पे आई, बाउंस हुई, फिर के मुड़ के दोबारा इस रेंज में आई और फिर बाउंस हुई। ठीक है,
सो $8.30 और $8.35 क्या है? सपोर्ट सपोर्ट। ठीक है जी। तो अब क्या होगा, यहां पे इस जगह पे आपको दो कंफर्मेशन मिलनी थी। क्या? एक तो इन दोनों कैंडल्स की बॉडीज यहां से स्टार्ट हो रही हैं, इंपॉर्टेंट लेवल है। दूसरा, इसी कैंडल के ऊपर स्टॉक ओवरसोल्ड है। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो आपके पास दो तरह की कंफर्मेशन आ गई, एक तो सपोर्ट का लेवल है, दूसरा आपकी स्टॉक ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे ट्रेड लेना कोई नो ब्रेनर नहीं था। दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है जी। अब स्टॉक मुड़ के गया, आपने इत्तेफाक कर लिया, शुक्र है जी मुझे 20 सेंट प्रॉफिट हो गया, $200 मैंने लॉक इन कर लिए। स्टॉक मुड़ के दोबारा उस रेंज में आया जी। ठीक है, स्टॉक दोबारा उस रेंज में आया, लेकिन इस दफा स्टॉक ओवरसोल्ड नहीं है। तो ये गुड साइन है या बैड साइन है? गुड साइन है। गुड साइन है। इसका मतलब क्या है कि जो सेलर्स हैं वो स्टिल दे आर होल्डिंग ऑन टू देयर शेयर्स। अब बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। यहाँ पे थोड़े लोगों ने प्रॉफिट ली है, ठीक है, लेकिन ज्यादा ने होल्ड किया हुआ है। वो बिलीव कर रहे हैं कि स्टॉक क्या जाएगा और ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। तो आप इमेजिन करें, चूंकि ये सपोर्ट की रेंज में था, ठीक है, तो जो बायर्स थे वो रेडी नहीं थे यहाँ पे बाय करने के लिए। बिल्कुल रेडी थे ना। और RSI ओवरसोल्ड नहीं है, क्योंकि जो पहले बाय किए जिन लोगों ने इधर, वो उन्होंने सिर्फ होल्ड किया हुआ भी। ठीक है, तो जब बायर्स जंप इन हुए इस एरिया में, तो प्राइस के साथ क्या हुआ? दोबारा ऊपर चलेगा, प्राइस दोबारा ऊपर चली गई। ठीक है जी। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे हाफ ऑफलोड किया, वापस उस रेंज में दोबारा आपने ऐड कर दिया, ठीक है, और अब देखते हैं कि आगे चार्ट का क्या सीन है। ठीक है, ठीक है जी। अब इसने बेसिकली ये अगर देखें ना शॉर्ट टर्म में, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, और ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या यहां पे? मैंने पहले बोला कि सी क्या है, वो प्रीवियस क्या होगा? बी हो जाएगा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है जी। तो अगर यहां पे आपने टॉप अप करना है, तो आपने देखना कि आपका स्टॉप लॉस राइट बिलो दिस पॉइंट होना चाहिए। ठीक है जी। लेकिन पॉइंट ये कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, स्टॉक मेड अ मूव, पुल्ड बैक, स्टॉक मेड अ मूव, पुल्ड बैक, स्टॉक मेड अ मूव, ठीक है जी। इवन दो यहां पे ये फेक आउट भी है। कैसे फेक आउट है भला? Come on. The candle didn't close above the EMAs. Even if it did close, this candle closed above, this candle closed above, this candle closed below a major moving average, which is 50 EMA. 50 EMA। क्योंकि हमने इसको थिक क्यों किया हुआ, इसको ज्यादा थिक क्यों किया हुआ, क्या वजह वाला? It's the major one. It's a strong resistance और strong support। ठीक है जी, अंडरस्टैंड कर रहे हैं सिस्टम को? तो भाई ये जो व्हाइट लाइन है, ये कौन सा प्राइस शो करती है? कौन सी व्हाइट लाइन? ये जो डॉटेड व्हाइट लाइन है ना? हाँ। ये क्लोज है, यस्टरडेज क्लोज। ओके ओके ओके, ठीक है। अब अगर तो प्राइस इसके अबव है ना, ठीक है, अभी देखते हैं, चलते हैं। अगर प्राइस उसके अबव है तो इसका मतलब यह है कि वो सपोर्ट है। ठीक है, अगर उसके नीचे है तो फिर इसका मतलब है वो क्या है? यस्टरडेज क्लोज जो है ना, वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है, दैट कुड एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है जी। बट पॉइंट में जो समझाना चाहता हूं कि इस पूरे स्टॉक के ऊपर कल कितनी अपॉर्चुनिटी थी, जहां मर्जी देखें आप, बिल्कुल आपको 30, 20, 30, 40 सेंट के ट्रेड 10-15 ट्रेड मिलेंगे इसके ऊपर। लेकिन वो उस सूरत में मिलेंगे जब आपको पता हो कि डिमांड एंड सप्लाई जोन कहां पे है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पे है, स्टॉक ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट कहां पे है,
ठीक है, वो अन्यवाह कहते हैं ना, अंधेरे में तीर नहीं चलाने वाली बात हो, अन्यवाह नहीं चलना। हाँ जी, हाँ। बात समझ रहे हैं सारे लोग? हाँ। अब दोबारा देखें यहाँ पे, ये अभी अब हम अगले टाइम फ्रेम पे आ गए। यहाँ पे स्टॉक वाज वे टू ओवरसोल्ड, ठीक है जी, ओके, पूरी रेंज में। तो आपने अगर इधर एंट्री ले ली, हालांकि यहाँ पे इसको ओवरसोल्ड होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है कि जो होल्डर्स हैं उन्होंने स्टिल होल्ड किया हुआ स्टॉक को, दे आर नॉट सेलिंग इट। बेसिकली जब भी बायर ज्यादा होंगे और सेलर्स कम होंगे ना, तो स्टॉक ओवरसोल्ड नहीं हो सकता। ये बैलेंस है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है? Can you repeat that? So stock can only go oversold if there are less buyers and more sellers. Okay? क्योंकि देखिए ना, ये वाला प्राइस जो है, ये प्राइस, ये इस प्राइस से नीचे है कि नहीं है? जी। नीचे है ना? तो स्टॉक फिर भी ओवरसोल्ड नहीं है। क्या मतलब है? प्राइस नीचे जा रही है, आरएसआई ऊपर जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स। रिवर्स, इसको एक स्पेसिफिक चीज बोलते हैं। अब पहले मैंने शायद जिक्र किया है, नहीं क्या किया है मैंने रिकॉर्डिंग में, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। ये है डाइवर्जेंस, ठीक है जी। डाइवर्जेंस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेटर, ठीक है? प्राइस नीचे जा रही है, आरएसआई ऊपर जा रही है, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न, ठीक है जी? बात समझ रहे हैं? Got it. सो यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेड बनता था, इजी, आपका 60 सेंट से इजी ट्रेड बनता था, ठीक है जी? अच्छा, अब हम ये स्ट्रेटजी के अंदर घुस गए आप सारे। जो मैंने कल बात करनी थी वो मैंने आज कर दी है सर, तो मैं सोच रहा हूँ मैं कल क्या करूंगा बात, लेकिन हम इसके ऊपर बहुत सारी बात करेंगे। अच्छा जी, आरएसआई का सबको समझ आ गया है जी। और कितनी इंपॉर्टेंट है आरएसआई? जी। आज से पहले किस किसने आरएसआई का सुना हुआ था कि आरएसआई कोई चीज है? कोई नहीं सुना। ठीक, ओके। अब है फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है जी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है जी? इसको मैं ज्यादा टच नहीं करूंगा कि मैं इस पे बिल्कुल भी रिलाई नहीं करता, जर्रा बराबर होता है ना, जर्रा बराबर, ठीक है जी? मेरी आंख मुझे बता देती है कि फिबोनाची पे कहां पे स्टॉक खड़ा है, और ये आपको भी बताएगी, ठीक है जी? अच्छा, फिब कहता है जी कि आपने ड्रॉ करनी है फिब लाइंस, ठीक है जी? फिब लाइंस ड्रॉ करनी है जो लोएस्ट पॉइंट है और हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है? सॉरी, ऊपर से नीचे की तरफ आना, सॉरी। एक तो जब मैं स्ट्रीमिंग करता हूँ, ये साथ मेरा सिस्टम बिल्कुल बैठ जाता है। अच्छा, ये फिब टूल है, ये हर एक चार्ट के अंदर मौजूद होगा, फिबोनाची लाइन, ठीक है जी? तो आपने क्या करना है, अब ऊपर वाला जो पॉइंट है वहां से नीचे की तरफ जो है वो खींचना है अपनी लाइन, ठीक है? जो ये प्रीवियस लो है, ठीक है, जहां से ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है जी? तो ये आपको ना डिफरेंट लेवल्स देगा, ठीक है? तो जितनी डीप पुल बैक है ना, उतना ही स्ट्रॉन्ग कम बैक होगा। बात समझ रहे हैं? सो ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 61.8% है, ठीक है, ड्रॉप, ठीक है? ये लेवल जो है सबसे स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट है, ये यहाँ पे आपको एंट्री लेनी पड़ेगी, ठीक है? और जितना ये, सॉरी, किसने सवाल पूछा? Yeah, so the 61% is where that's more of a demand zone then. Yes, yeah. So between 50 and 61.8 is the highest demand zone. ठीक है जी? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? Yeah. फिर मैं यूज नहीं करता, लेकिन अगर आपने यूज करना है तो इस तरह आपने यूज करना है, ठीक है जी? तो भाई करंट कैंडल पे कैसे यूज होगा जैसे हमने एंट्री की है? वही मैं कह रहा हूँ ना कि कैंडल, फर्ज करें ये वाली कैंडल नहीं बनी अभी, 1 2 3 4 ये कैंडल नहीं बनी है,
अभी सिर्फ आपके पास ये कैंडल है और ये कैंडल, ठीक है, दो कैंडल फॉर्म हो गई हैं। और ये तो हमें पता है ना कि जब एक रैली होती है, स्टॉक मेक्स अ हाई, इट पुल्स बैक, ये तो हमें कंफर्म है। ये एक स्टॉक में नहीं, हजारों स्टॉक में होता है, हर रोज होता है, सुबह होता है, शाम होता है, हर जगह पे होता है, ठीक है। जब आपको 2-3 बड़ी कैंडल्स नजर आएंगी, उसके बाद रिट्रेसमेंट जरूर होगी, ठीक है। तो जब आपको हाई मिले, नया हाई मिले, उस हाई से जो बॉटम है उस तक आपने एक लाइन खींचनी है, वो आपको रिट्रेसमेंट की डेप्थ बता देगा। यानी कि आपका जो ऑर्डर है ना यहाँ पे, वो होना चाहिए था 775, 776 और 785 के दरमियान, या 88 के दरमियान। बात समझ रहे जी? लेकिन मैं आपको एक और बेहतरीन इसका हल बताता हूं। अगर आप ये करना चाहें यूज करें, अगर आपको समझ आए अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ये कैंडल नजर आ गई और ये कैंडल नजर आ गई है, ठीक है, तो अब आपका ऑर्डर टेक्निकली जो चीजें मैंने फिबोनाची के अलावा बताई हैं, कहां पे होना चाहिए यहाँ पे और क्यों होना चाहिए, कोई बंदा मुझे बता सकता है? हाँ जी, अपना EMAs ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। If it's coming down and touching the EMAs, near the EMAs, no? EMA? Yeah, EMA. EMA यहाँ पे कहां पे है? ये येलो वाला नीचे। येलो तो बहुत दूर है, वहां तक तो नहीं आएगा। प्रीवियस का जो क्लोज हुआ उस पे। अच्छा, आपको ये दो कैंडल नजर आएगी, ये और ये, ठीक है, तो आपका ऑर्डर कहां पे होना चाहिए? हम बाय कहां पे करते हैं, किस चीज के ऊपर बाय करते हैं, कहां पे? सपोर्ट पे। सपोर्ट पे। तो यहाँ पे नीयरेस्ट सपोर्ट आपको कौन सी नजर आ रही है? वो रेड वाली आ रही है। रेड वाली, उसका नाम क्या है? VMA भाई। VWMA, ठीक है। तो आपका ऑर्डर कहां पे होना चाहिए? नीयरेस्ट सपोर्ट के ऊपर। सिंपल, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसके ऊपर, ठीक है जी। और दूसरी बात, जो प्रीवियस रूल हमने बनाया था, ठीक है, देखिए इस कैंडल के और इस कैंडल के हाई को, इसके लो को और इसके हाई को, दोनों को मिलाएं और ये आपका बाय जोन बनेगा। जो ये बड़ी कैंडल है ना, ये वाली, अभी तो यही आपको नजर आ रही है ना, इसको भूल जाएंगे ये कैंडल है इधर। मैं आपको रूल समझा रहा हूं, ठीक है। इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के लो को दोनों ड्रॉ कर लें लेवल, और वो आपका बाय जोन बनेगा, वो आपका पुल बैक हो सकता है। अंडरस्टैंड? जी। अब लोग कंफ्यूज नजर आ रहे हैं सारे लोग मुझे। ये जो दोनों लाइनें इनकी समझ नहीं आई, हाई और लो की। ये वाली दो लाइनें जो है, ये वाली जो है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो प्रीवियस हाई होता है वो सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल है ना जी। तो जब फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल आपको नजर नहीं आई थी, ये वाली कैंडल नजर नहीं आई, ठीक है, ठीक। ये वाली कैंडल ने बड़ा जंप लिया है, ठीक है, तो क्या आप इस कैंडल के ऊपर लाइन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? ठीक है, लगाएंगे। ठीक है, लगाएंगे लाइन। जी। तो ये लाइन लग गई आप, ठीक है। अब ये वाली कैंडल बनना शुरू हो गई है, ठीक है जी। तो ये कैंडल ओपन किधर हुई है? इस लाइन के नीचे हुई है ना, ये देखें, ये लाइन खड़ी है $7.88 पे, ठीक है जी। और इस कैंडल का ओपन किधर है? नीचे $7.86। तो 2 सेंट इससे नीचे ओपन हुई है इस कैंडल से, ठीक है, ओपन हुई है, ठीक है। तो इस कैंडल का लो क्या है? जब ओपन हुई है तो नीचे जाने लगी तो रेड थी ना जी। जी। जब 786 पे ओपन हुई है और वो गई है, अल्लाह भला करे आपका, वो गई है 777 पे, तो जब तक वो 77 तक जा रही थी तब तक तो रेड थी ना वो कैंडल, ये वाली कैंडल ग्रीन तो नहीं थी। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ओपन ऊपर हुई है और नीचे जा रही है तो रेड होगी ना कैंडल उसको। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ठीक है।
तो जब ये 77 पे गई और फिर 77 से मुड़ के वापस ऊपर जाना शुरू हुई, ठीक है, और इस पॉइंट को इस कैंडल ने क्रॉस कर दिया 788 को, विच वाज द प्रीवियस हाई, ठीक है, तो ये साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब जो इस कैंडल का बॉटम है वो क्या बनेगा? इस कैंडल का लो क्या बन जाएगा? जो नीचे वाले का रेजिस्टेंस था, इस कैंडल का लो क्या बनेगा? उसको क्या बोलेंगे? सपोर्ट, क्योंकि वहां से 777 से क्या हुआ, प्राइस नीचे जा रही थी, 77 से क्या हुआ, प्राइस ऊपर बाउंस होना शुरू हो गया। तो मोस्ट रीसेंट जो सपोर्ट कैंडल बनी है ना, वो बनी है 777 के ऊपर, तो इसलिए हम इसको रेड लाइन दे देंगे और ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ठीक, अब आपके पास दो लाइनें आ गई हैं। यहां पे आपका अगर क्विक ट्रेड लेते हैं ना, अगर आप क्विक ट्रेड इसको बोलते हैं, ठीक है जी, तो जब ये 788 इस लाइन पे इसने क्रॉस किया, 790 पे आपका ब्रेकआउट ट्रेड बनता था, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस ये यहां पे बनता था। अब हम बहुत डीप चले गए स्ट्रेटजी के अंदर, जो मैं बात नहीं करना चाहता। अच्छा, आपका स्टॉप लॉस जो ये 777 इसके नीचे होगा, क्योंकि ये तो यहां से पहले ऑलरेडी जो सेलर्स हैं उन्होंने प्राइस पुश करने की कोशिश की है, फेल हो गए, ठीक है। अब अगर दोबारा वो 777 से नीचे प्राइस लाने में कामयाब हो जाते हैं, इसका मतलब बायर्स आर हैवियर, बायर्स आर मोर स्ट्रॉन्ग, सेलर्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन बायर्स, ठीक है। इसलिए प्राइस 77 से भी नीचे चली गई। अब तो आपका स्टॉप लॉस उधर होना चाहिए अगर आपने इसकी ब्रेकआउट एंट्री ली है, ठीक है। आई थिंक इट्स गेटिंग टू डीप, वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं मेरे ख्याल में। आप दिमाग अब इसको हम इसको इधर ही छोड़ते, क्योंकि ये बहुत जो है ना घुमा देगा आपको, ज्यादा हो गया। हाँ, इसको हम सिर्फ फोकस करते हैं अभी जो हमने क्विकली। अच्छा, कट इट शॉर्ट। आरएसआई समझ आ गई सबको? जी जी, फिर रिट्रेसमेंट समझ आ गई कि क्या है, कैसे ड्रॉ करनी है? हाँ जी, 61.8 और 50 के दरमियान आपने बाय करना है, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर दोबारा से फिब ट्राई करते हैं तो शायद एक नया एंगल निकला। लेट मी चेक। अगर इसके ऊपर हम फिब दोबारा से ट्राई करें, Hello, John. Yeah. अच्छा ये देखें आप, कितना कोइंसिडेंस है, ठीक है जी। अब इसको कोइंसिडेंस बोले या टेक्निकल्स बोले, जो कौन सी चीज मर्जी बोलनी है बोले, ठीक है। ये फिब रिट्रेसमेंट हमने ड्रॉ की है। Sure, yeah. फिब रिट्रेसमेंट के ऊपर सबसे डीप जो लेवल है वो 778 है, ठीक। तो हमने जो पहले लेवल बनाया वो 777 है, So ठीक far है? I'm good. So it's not a problem at the moment. ठीक है Yeah. तो ये सेम लेवल हुआ ना, 1 सेंट का फर्क है, वो भी शायद ड्रॉ में आगे Yeah, if if I have more work, then can I contact you? Is it okay, John? Yeah. But Yeah. Sure. your mute is not off. Sure, no problem. Yeah, I'll let you know. Yeah. Thanks, guys. Thank you. Bye. और ये मजे की बात देखें कि जो मैंने पहले बताया आपको कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये दो लाइनें कहां पे ड्रॉ करनी है। अब 61.8 और 50% जो लाइनें हमने पहले ड्रॉ की हैं, ठीक है। 50% फिब रिट्रेसमेंट कहां पे आनी है? 788 पे, ठीक है। और हमने ड्रॉ किया है, सॉरी 791 पे, और हमने ड्रॉ किया है 788 पे। तो या तो आप फिब रिट्रेसमेंट यूज करें या जो मेरा मेथड है वो यूज करें, जो सा मर्जी यूज करें, दोनों बेहतर है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने सुना अब इतना यूज नहीं करते भाई ये फिबोनाची मैं तो वाला। यूज, मैं कभी भी, मुझे तो, मैं जब देखता हूँ स्टॉक को तो मुझे पता चल जाता है कि कितनी रिट्रेसमेंट होनी है और कहां पे मुझे एंट्री देनी है। और स्पेशली जब आपके पास सपोर्ट लेवल मौजूद है, ठीक है,
जब ये सपोर्ट लेवल आपके पास मौजूद है तो वाई आप अपने चार्ट को क्लटर क्यों करें? ठीक है, एग्जैक्टली या और जितना टाइम आप रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने पे लगाएंगे, हो सकता है प्राइस कहां से कहां हो जाए। That's what I was thinking. You have to do all these lines. By the time you've done them, the price will be gone. Exactly. So that's the point. You just need to be very fast and do the way I'm trying to teach you how basically I do things. Okay. Visual references. भाई एक क्वेश्चन है जी सर। कि जब भी एंट्री का लेना तो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए एक सपोर्ट के ऊपर ग्रीन कैंडल। देखो एक बात मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, स्टॉप लॉस की ऑप्शन आपके पास मौजूद है ना? बिल्कुल। ये स्टॉक अगर $100 पे भी चला जाए और आप $100 पे भी खरीदें तो क्या कंट्रोल आपके पास है कि आप $99 पे बेच सकें इसको? जी बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। तो ज्यादातर लोग फेल कहां पे होते हैं? क्या वजह है, क्यों फेल होते हैं ज्यादातर लोग? स्टॉप लॉस नहीं लगाते। स्टॉप लॉस लगाते नहीं या छोटा लॉस लेते नहीं। ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें बस, ठीक है? एनीबडी कैन एंटर रॉन्ग। मैं भी रॉस कैमरॉन परसों $42,000 लूज हुआ है उस स्टॉक पे, जिस स्टॉक पे हमारे ग्रुप पे एक ही बंदा था किंग मेकर, उसने $40,000 बनाया है हमारे सिग्नल के ऊपर, ठीक है? और रॉस कैमरॉन जैसा बंदा $42,000 लूज कर गया उसी स्टॉक के ऊपर, ठीक है? So anybody can get caught in it. The point is how fast you are to take the smaller loss. तो Okay जी? अगर भाई मैंने एंट्री ये रेड कैंडल पे लेनी हो, एक सबसे बड़ी सबसे ऊपर चला गया ना और चौथी रेड कैंडल आई है नीचे, ये वाली, इससे नीचे वाली, ये वाली नहीं सबसे जब हाईएस्ट गया ना हाँ तो हाँ तो और नीचे जाइए नीचे। हाँ ये यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनती है ना? यहाँ पे एंट्री बनती है, हाँ। यहाँ पे एंट्री बनती है, उसकी वजह ये है, लेकिन अगेन देखें ये लेवल आपको नजर आ रहा है, ये लेवल, ठीक है? ये हाईएस्ट पॉइंट था, ठीक है? लेकिन चूंकि स्टॉक, ये फुटबॉल वाली एग्जांपल है, ठीक है? और जरूरी नहीं कि वो हर बार वो सच्ची होगी, ठीक है? 95% ऑफ द टाइम सच्ची होगी, ठीक है? यहाँ पे आपके पास 3 लेवल थे, एक ये, एक 9 SMA, एक VWMA, ठीक है जी? कितने लेवल है आपके पास सपोर्ट के? तीन तो है, 4 है। हाँ, टेक्निकली आपका, हाँ एक और चीज हो सकती है, एक चीज हो सकती है आप ना लें, और क्यों ना लें? वो ये है कि ये टाइम फ्रेम क्या है यहाँ पे 1:05, ठीक है? और अगर हम 1:05 में देखें तो RSI हमारी है 60, ठीक है? RSI हमारी है 60, ठीक है जी? तो फिर भी मेरे ख्याल में यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे टेक्निकली, ठीक है? अगर लेते तो लॉस में जाते हैं ना भाई, लॉस में तो वो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता। हाँ। यहाँ पे ट्रेड बनता था, ठीक है? लेकिन अब इसका सेफ तरीका क्या था, मैं आपको बताता हूँ सेफ तरीका क्या था, ठीक है? स्टॉप लॉस लगाते 10-14 पे, आपने 10-30 पे ट्रेड लिया, ठीक है जी? 10-30 पे ट्रेड लिया, या आपने इसके हाई पॉइंट पे, क्योंकि ये कैंडल बहुत फास्ट आई होगी नीचे, ठीक है? आपने ट्रेड लिया फॉर एग्जांपल 10-20 या 10-30 के दरमियान, जहां भी लिया, ठीक है? 10-20, 10-30, और जो इस कैंडल का पॉइंट था ना जहां पे ये मैच हुई है दोनों, क्योंकि ये ओरिजिनल ब्रेकआउट कैंडल थी, इसका जो बॉटम है ना उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करके, आप जब लाइन ड्रॉ करते तो आपको पता चल जाता कि ये वाली जो लाइन है ना ये मूविंग एवरेजेस के नीचे है ना, ये देखिए EMA और SMA और VWMA के नीचे, ठीक है? तो आपका स्टॉप लॉस $10.10 या $10.10 पे होता है, ठीक है जी? तो अराउंड
हेयर, ठीक है जी, $10 10 सेंट यहाँ पे, ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? लेकिन चूंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अगर देखी जाए तो $10 30, और इसके अगर हाफ पे भी जाता स्टॉक यहाँ पे, ठीक है, $11 30, तो $1 का फायदा था आपको और $20 का नुकसान, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी कर दी जाए, ठीक है, ठीक ठीक। हाँ बात समझ रहे हैं आप? हाँ जी, क्योंकि ये तो नहीं ना कि अगर 10 ट्रेड लेंगे तो 10 के 10 आपके फायदे में जाएंगे, आपको तो उन 10 में सिर्फ 5 को फायदे में लेने देना है, और जो 5 नुकसान में जाएंगे उनमें करना क्या आपने, स्टॉप लॉस। उनमें बस आपने मेक श्योर करना है कि लॉसेस आर लेस देन योर प्रॉफिट्स, दैट्स ऑल, ओके जी, दैट इज द बेसिक रूल। ठीक है एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? जी। जी। अब ये ऑर्डर टाइप्स किस किस को पता है? लिमिट स्टॉप हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप हो गया, रेंज, हम सिर्फ 3 ये जो ग्रीन है इनके ऊपर फोकस करेंगे और कोई नहीं करेंगे। किसी को पता है व्हाट इज अ लिमिट ऑर्डर सर? व्हाट इज अ लिमिट ऑर्डर? लिमिट ऑर्डर क्या है? जो आप एक प्राइस लगाते हैं, मैं सिर्फ इतनी प्राइस तक ही खरीदूंगा। बिल्कुल, लिमिट ऑर्डर ये है कि फॉर एग्जांपल प्राइस अभी जा रही है $12, ठीक है, ओके, ये $12 जा रही है प्राइस, आप 1000 शेयर खरीदना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब ये सपोर्ट के ऊपर आए, इस प्राइस के ऊपर आए $10 और 40 पे तब मैं खरीदूं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 10.40 लिखेंगे, प्राइस अभी 12 चल रही है, ठीक है, तो आप 10.40 लिख के यहाँ पे आप SMRL TL यानी स्मार्ट लिमिट ऑर्डर है, ठीक है जी, लिमिट ऑर्डर डाल देंगे, ठीक है, और वो आप बाय कर देंगे, वो ऑर्डर तब एग्जीक्यूट होगा जब प्राइस मुड़ के आपके जो ऑर्डर है ना 10.40 उसके ऊपर आएगी। भाई क्या डिफरेंस है स्मार्ट लिमिट में और लिमिट ऑर्डर में? कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ SMRTL जो है ना रूट है, वो रूट जो जो आपका प्लेटफॉर्म है ना वो खुद डिसाइड करेगा। ओके ओके, ठीक है जी। You can do that. Okay, that's pretty good. You can put the order. Oh, that's pretty nice. Okay. Yeah. But that you will not do with hotkey. You will only do through form because you will still have enough room or time for this order to be executed. Because अगर फर्स्ट के 10.50 पे प्राइस है और आप 10.20 पे खरीदना चाहते हैं तो you just type in the order quickly, 10.20 का ऑर्डर डाल दें और जब वो 10.20 पे प्राइस आए आपका ऑर्डर खरीदा जाएगा, ठीक है जी। ये तो हो गया लिमिट। तो इसी तरह स्टॉप लिमिट भी वही चीज है। स्टॉप लिमिट का मतलब यह है कि आपके पास शेयर्स हैं, ठीक है, तो आप ये चाह रहे हैं कि आप उसको एक सर्टेन प्राइस के ऊपर आके एग्जिट कर दें, तो वही स्टॉप लॉस ही हो जाएगा वो भी। स्टॉप लॉस स्टॉप लिमिट ही है। हाँ जी, ठीक है जी। जी। और ट्रेलिंग की मैंने उस दिन एग्जांपल दी थी आप लोग को। हाँ जी। ट्रेलिंग स्टॉप किसको पता क्या है? नहीं पता जी। अच्छा, ट्रेलिंग स्टॉप का मतलब ये है, अच्छा इसको ना मैं ग्राफिकली थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आपने समझने के लिए देखना है, ठीक है। समझ लें कि आपकी जो ये रेड लाइन है, रेड लाइन, ठीक है, ये स्टॉप लॉस का ऑर्डर है, ठीक है जी। रेड लाइन जो ये स्टॉप लॉस का ऑर्डर है आपका, ठीक है जी। और जो ग्रीन लाइन है ये प्राइस है जो Yes, कैंडल चली हुआ है, ठीक है। ये समझने के लिए सिर्फ, ठीक है, ऐसे होगा नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बात करो, ठीक है। तो ग्रीन लाइन जो ये प्राइस है और जो रेड लाइन है ये स्टॉप लॉस का ऑर्डर है आपका, ठीक है। आपने खरीदा स्टॉक को यहां पे, इसको हम ऑरेंज लाइन दे देते हैं, ठीक है जी, ऑरेंज येलोइश, ठीक है जी।
और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया मार्केट प्राइस जो है ना वो उससे 20 सेंट कम, ठीक है, कितने सेंट कम? 20 cent, 20 cents, ठीक है, तो अभी प्राइस क्या है? 7.95, स्टॉप लॉस क्या है? 7.75. 20 सेंट नीचे, ठीक है, 20 सेंट का डिफरेंस है। अब प्राइस ऑल ऑफ अ सडन मूव हो गई इस कैंडल के ऊपर, ठीक है, 8.12, आपका स्टॉप लॉस भी ट्रेवल करता जाएगा उसी डायरेक्शन में और 792 पे चला जाएगा। अब And the डिफरेंस stop loss, the अब stop loss डिफरेंस कितना moves. है? डिफरेंस कितना है प्राइस और स्टॉप लॉस में? 20 सेंट। सेम ही रखेगा उसमें, ठीक है, सेम ही रखेगा, वो चेस अब करता जाएगा उसको, ठीक है। $9.26 पे और $8.06 पे। Oh, so ठीक है? that's a trailing stop loss. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यस, ये So चीज it ठीक follows है। it. इट फॉलोज द मार्केट, Yeah. ओके। अब ये 60 पे और स्टॉप लॉस 40 पे। So why would you use the other one? सॉरी, Why I'm gonna- wouldn't I'm you use gonna this all the explain time instead of the other one? yeah, The hard stop. I will explain this. This one's better if it's following it. Yeah. So for example, let me go here, and price right now is $9 and $9, yeah. जी। And stop loss is at $8.80. $8.80. If price moves in this direction towards the stop loss is not going to go down. No. Stop loss is Okay, going to sir. stay at $8.80. Okay. क्या? Price came here, $8.86, bounced off, went all the way to $9.70. Okay, and now the stop loss moved, let's say it went to 50, yeah, stop loss moved to 30. और ये अपने आप ही ट्रेलिंग अपने आप जो डिस्टेंस रखा 20 सेंट का अपने आप ऊपर हो जाएगा। हाँ, ये मूव होता जाएगा, ठीक है जी। And now stock pulls back a little bit, okay, then goes up again, ठीक है जी। Now your stop loss moves in this direction, okay, 70, but now if it moves back and touches this line, you're out. सेल हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है। So everybody understands what trailing stop loss is? Exactly. Yeah. That's a good one. It's a good one, but we will not use it all the time. We will use it only for a situation I will explain later. और भाई जब आप लोग आपकी कंट्रोल बी पे जो आपने लगाया हुआ स्टॉप लॉस वो ऊपर वाला भी लगाया हुआ कि अगर 20 वो से रेंज ऊपर है, जाए तब वो सिर्फ उस स्टॉक के लिए जो एक्सट्रीमली वोलेटाइल हो। मैं वो हार्डली कंट्रोल भी यूज करता हूँ, वेरी रेयर। हाँ, क्योंकि वो एक दिन मैंने पेपर ट्रायल पे लगाया था, वो इतना वॉलेटाइल था कि वो ऊपर वाला भी हिट हो गया, बाद में नीचे वाला भी हिट हो गया। ऐसे ही होता है। वो सिर्फ उस स्टॉक के लिए जो हॉल्ट हो रहा हो ना बार बार, उसमें एंट्री लेने के लिए वो आप दबाते कंट्रोल भी, ठीक है। ओके। उसमें ये श्योरिटी होती है कि आप प्रॉफिट भी लेंगे और लॉस भी जल्दी जल्दी लेके क्लियर हो जाएंगे, भाग जाएंगे, ठीक है जी। ओके जी, एनीबॉडी अंडरस्टैंड्स रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो? No. जी, ओके, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, एनीबॉडी? Risk and reward Balancing. Risk and reward ratio is simple. How much money you are willing to lose to make X money, yeah? So for example, if I ask you, how much money you are willing to lose to make $200, and you say $50 I'm willing to lose to make $200, what is your risk and reward ratio? 25%.
risk and reward ratio, how would we mention the ratio? 1 to 4, yeah? 1 to 4. Yeah. 1 to 4 ratio. Okay, जी? Sorry? 1 to 40? 1 to 4 ratio. 1 to 4. यानी तुसी $1 लूज करना चाह रहे हो $4 बनाने वास्ते, ठीक है? Right. रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो तो बगैर तो तुसी ट्रेड कर ही नहीं सकते ना। अगर आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का नहीं पता कि आप कितने पे लॉस लेंगे और कितने पे फायदा लेंगे, तो फिर आप अंधेरे में ही चल रहे हैं, ठीक है? चल ही रहे हैं अंधेरे जाए तक जी। सो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आप मैक्सिमम $50 लूज करने के लिए तैयार हैं $200 प्रॉफिट बनाने के लिए, या $50 लूज करने के लिए तैयार हैं $150 प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक है? जितनी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हाई होगी उतना ही रिस्क हाई होगा, उतने ही चांसेस कम होंगे उस रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को हिट करने के लिए। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आपकी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है टू लूज $100 टू मेक $500, तो कितनी देर आप मार्केट में एक्सपोज रहेंगे? रफली ज्यादा देर ना, कंपेयर टू मैं ये कहूं कि आप अगर $100 लूज करने के लिए तैयार हैं $200 बनाने के लिए, तो यू विल बी इन एंड आउट क्विक, राइट जी? सो जो लोएस्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है वो लेस रिस्की है कंपेयर टू लार्जर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है? So 1 to 3 risk and reward ratio is very healthy and very good, and it makes sure that you are always in profit end of the day. ठीक है जी? बात समझ रहे हैं सर? ठीक है जी। वॉश सेल किसको पता है? वॉश सेल क्या है? नहीं पता। नए लोगों में से किसी को पता हो? बलविंदर पाजी, महबूब, आसिफ? वॉश ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਧੋਣਾ ਤੇ ਸੇਲਮੈਨ ਨੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। वैसे तो मैं ठीक ही है। वॉश सेल मतलब ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਧੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੋਣ ਗਈ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਸਟ ਵਾਸ਼ ਸੇਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। So basically wash sale rule is by SEC। वो रूल ये कहता है कि अगर आपने किसी स्टॉक के ऊपर लॉस किया है, ठीक है, किसी भी स्टॉक के ऊपर लॉस किया है, फॉर एग्जांपल आपने आज एक स्टॉक लिया जिसके ऊपर आपको $500 नुकसान हो गया, ठीक है, अगर आप वही स्टॉक विद इन 30 डेज खरीदेंगे, ठीक है, और अब उसके ऊपर आपने $1000 प्रॉफिट बनाई है, ठीक है जी, तो इन रियलिटी आपकी प्रॉफिट कितनी है? 500 जी, ठीक है, लेकिन वॉश सेल रूल के मुताबिक आपकी प्रॉफिट जो वो 1000 होगी, ठीक है, ठीक है जी। ये जो आपका लॉस है वो लॉस काउंट नहीं होगा, ठीक। इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा आपके ऊपर? तो जब आप वो टैक्स फाइल करेंगे, हाँ जी, जब आप टैक्स फाइल करेंगे तो टैक्स बिल आपका हाई आएगा, ठीक है जी। इट मीन ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਿਆਏ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ऐसे लिए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ बेसिकली टेक्निकली ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਲਾਸ 250 ਹੈ ਅਗਰ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, और ਤੁਹਾਡੀ प्रॉफिट $750 है, लेकिन इन रियलिटी फॉर टैक्स पर्पसेस ਤੁਹਾਡੀ प्रॉफिट 1000 ही होनी, ठीक है जी। अच्छा, हाँ, क्योंकि जो वो जो लूज किए हैं वो कहाँ जाएंगे? वो बस समझेंगे वो खूह खाते पड़ गए। अच्छा, हाँ जी, You can't declare loss. इट्स नॉट कंसीडर्ड एज लॉस। हाँ, लेकिन भाई अगर पहले $1000 का प्रॉफिट हो गया, बाद में 300 लॉस कर लिए, तो भी वो 1000 ही प्रॉफिट माना जाएगा विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज जब भी आप ट्रेड करेंगे,
ओके ये ओनली 30 डेज काउंट होता है। अगर आपने बेच दिया तो, पहले वाला बेच दिया है ना तो फिर दोबारा लिया है तो, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि, इसीलिए मैं कम ट्रेड करता हूं, ठीक है, पर मैं क्वालिटी ट्रेड करता हूं। ज्यादा लोग समझते नहीं, वो पागलों की तरह लगे रहते हैं, ठीक है। एंड ऑफ डे जब उनको टैक्स फाइल करना होता है तो पता चलता है जी कि उनकी जो 1 लाख की प्रॉफिट है वो एक्चुअली 2 लाख की प्रॉफिट है, ठीक है। ठीक है, सो इसके ऊपर आपने बहुत केयरफुली नजर रखनी है। ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੀਏ, ਲਿਮਟਿਡ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ, ਸਟਾਕਾਂ 'ਚ ਵੜੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਵੜੀਏ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਸਟਾਕ ਲਵੋ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ, ਰਾਈਟ। आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ थोड़ी हो जाएगी, दैट्स ऑल, ठीक है। अगर 30 दिन के बाद अगर करते हैं इस्तेमाल फिर उसमें क्या? कोई मसला नहीं, फिर वो लॉस भी लॉस काउंट होगा, ठीक ठीक है जी। अच्छा, ये जो रेड में टेक्स्ट लिखा हुआ है, सारे बंदे पढ़े जरा एक दफा लाउडली। To the moon. To the moon. we wish yeah. Dogecoin. किस किस ने ये फ्रेज सुनी हुई है? कुत्ता coin. किस किस ने ये फ्रेज सुनी, किस किस ने ये वर्ड सुने हुए हैं? सुनी हुई है, हाँ जी, सिर्फ सुनी ਟੂ ਦਾ हुई है। ਮੂਨ, ਟੂ ਦਾ ਮੂਨ ਭਾਜੀ हाँ जी, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਟੂ ਦਾ ਮੂਨ। टू द मून। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਟੂ ਦ ਮੂਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹੋਇਆ, ਬਟ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੂਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ठीक है। अच्छा, 90% जो लोग हैं ना, हाँ। उनके लिए कभी भी टू द मून नहीं होता। ये लिख के रख ले अपने दिमाग के अंदर। बिल्कुल सही बात। मैंने बिटकॉइन लिए थे। हाँ जी, I got some Bitcoin on Coinbase. मैं सोचा to the moon जाएगा. हाँ। All came down. Yes, exactly. क्योंकि basically to the moon term is from the pumpers, ठीक है। वो लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं मार्केट के अंदर, एक बंदे का 1 मिलियन फॉलोअर है या 10 मिलियन फॉलोअर है, ठीक है। तो जब वो ये फ्रेज बार बार यूज करेगा टू द मून, तो इट बेसिकली ट्रेन्स रिटेल इन्वेस्टर कि अब तो बस मैं मिलियनर बन के छोड़ूंगा, अब ये स्टॉक को तो रुकना नहीं है, या ये Elon करेंसी Musk के जैसे बंदे. तो जैसे ही आप बाय करते हैं ना, जैसे ही आप रश करते हैं बाय करने के लिए, तो जिस बंदे से आप बाय कर रहे हैं ना, वो बंदा पता है कौन है? आपने कभी सोचा है वो जिस बंदे से आप बाय कर रहे हैं स्टॉक या क्रिप्टो, वो बंदा कौन हो सकता है? मून वही तो नहीं गई? ये 90% चांस है कि ये वही बंदा है जिसने टू द मून का लारा आपको लगाया है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पंप एंड डंप। जो बंदा पंप करता है ना, वही डंप करता है, ठीक है जी। तो आज से आपने ना इसको, ये रेड इसलिए मैंने डिलिबरेटली रखा हुआ है कि देयर इज नथिंग To the moon. एनीथिंग लाइक टू द मून, ओके। Buy and sell in the same day. That's what we. There is no one-way flight. Okay, what goes up must come down. Yeah. कितने स्टॉक्स आप डेली देखते हैं जो ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं? ये देखिए, ये वाली प्राइम एग्जांपल, कोई सा भी स्टॉक आप देख ले, कोई सा भी स्टॉक उठा के देख लें, ठीक है। $40 से सीधा स्टॉक $5 पे आता है 5-6 दिन में, ठीक है। FCUV को देख लें आप, और कौन से थे लेटेस्ट, SPRT को देख लें आप, ठीक है। ATER को देख लें, जिस मर्जी स्टॉक को देख लें, ठीक है। तो आपका फोकस है गेट इन, मेक योर प्रॉफिट, गेट आउट, गेट इन, टेक स्मॉल लॉस, गेट आउट, ठीक है जी। ठीक Yeah. वी क्लियर? अच्छा, मेरे ख्याल में ना अब जो ये रह गया है ना हमारा ट्रेड और ट्रेड प्लान, ये हम इसको कल पे रखें, ठीक है. जी हाँ, अभी काफी हो गया। ठीक है जी। जी
ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਜੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੰਡਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਭਾਈਆ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਫਲੋਰ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 90% ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਡੈਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਡੈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ 100 ਟ੍ਰੇਡਰ ਬੈਠੇ ਆ, 200 ਟ੍ਰੇਡਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ। ਓਕੇ 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 ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਗਾਟ ਇਟ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਚਸੀਸੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਡੈਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਡੈਨ ਬਣਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਡੈਨ ਬਣਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਸਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆਵਣ ਸਾਡੇ ਫਲੋਰ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਅਸਿਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ 2-3 ਬੰਦੇ ਫਲੋਰ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਣਗੇ, 2-3 ਬੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਲੋਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਬੈਠੇ, ठीक है जी। हाँ जी ठीक है जी। अच्छा, आज आप लोगों को मेरे ख्याल में काफी चीजें क्लियर हुई कि थोड़ा सा हमने डाइव इन किया है और अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी है क्या जी? कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तीसरा सेशन है नहीं हमारा जी। 3 सेशन में आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको किस लेवल पे देखते हैं? अगर आप 15 को सुबह 1 पे थे, तो आज कहाँ पे खड़े हैं आप रफली? 1 to 15. On 15th when you started this, before you started, if you were at level 1, today what do you consider at what level you are? 1 to 10. 1 to 10. आज काफी चीजें क्लियर हुई जी, आज काफी चीजें क्लियर हुई। ओ ठीक है, that's good. पीछे वाली भी चीजें आज काफी क्लियर हुई, जो पहले वाली 2 दिन से की हुई ना, वो भी काफी क्लियर। हम अभी जो ये सारा कुछ हमने किया है, ये जी यहाँ से लेके ये सारा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, बल्कि ये भी इंक्लूडिंग, ये हम सारा अब अगले 2 दिन में इसको स्टॉक के अंदर देखेंगे, जाके अंदर करें। ठीक है ठीक है, ज्यादा बेहतर है। It's been a good day today. जी, अभी तो हम सिर्फ ये चीजों को डिफाइन करें कि क्या चीज क्यों है और कैसे, और उसका क्या इम्पैक्ट है। और जब हम इन सबको एक साथ लेके आएंगे तो वो बनेगी क्या स्ट्रेटजी हमारी। प्रैक्टिकल करेंगे उससे ज्यादा बेहतर हो जाएगा उसमें काफी। ठीक है जी। हाँ ते नवीद भाजी एक मिनट दसना फिर जी जी, क्योंकि मेरे इस लैपटॉप से भाजी जगपाल से वो ਜਿਹੜੀ ਡੈਸਕਟੌਪ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। लैपटॉप ਤੇ नहीं है तो फिर लैपटॉप तो हम नवा लेना पड़ेगा। ਵਿੰਡੋਜ਼ 7 ਆ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ 1-2 ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਿਆ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਾਡਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਾਡਾ 21 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ, 21 ਤਾਰੀਖ, ਠੀਕ ਹੈ, 21 ਤਾਰੀਖ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਹਾਫ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਡੇਟੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾਈਏ ਜੀ, ਨਾ ਕਮਾਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੈਂਬੂ ਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੈਂਬੂ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ? नहीं। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੈਂਬੂ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਲੈਂਦਾ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 ਸਾਲ
ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, 10 ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਨੀਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਫੈਕਟ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੇਡੀ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇਖਾਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਗਰੋਥ, ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ 50 ਤੋਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਲਾਨਾ 2.5 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਇਨਕਮ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ और 36 साल तक, 35-36 साल तक I was working non-stop on things I really wanted to do. So bamboo tree ਦੀ एग्जांपल ਜਾके गूगल सर्च भी करनी के bamboo tree ਦੀ एग्जांपल की है, ठीक है। सो ਤੁਸੀਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल महबूब पाजी ने 10,000 ਨਾਲ ट्रेडिंग करनी है, $10,000, ठीक है। आसिफ ने 10,000 ਨਾਲ ट्रेडिंग करनी है, बलविंदर ने 10,000 ਨਾਲ, हर बंदे ने 10,000 ਨਾਲ ट्रेडिंग करनी है उन रियल पैसे ਨਾਲ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ $10,000 ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। $10,000 ਤੋਂ $1 ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। अगले 3 महीने अगर $10,000 तुसी $15,000 बना दिता ना, ठीक है, 3 महीने से, ठीक है, $15,000, मैं तुहानू गारंटी देना कि तुसी अपनी जावा शामा छोड़ दो। $5,000 on top. Yeah, so That 10,000 doesn't sound like a lot. It's not a lot. That's the point here. It's not a lot. You know what is the most difficult part in this day trading thing? Making even $50 every single day for 20 days for 3 months. That is the most difficult task. But if you somehow manage to do that, only $50 for 20 days a month for 3 months, I assure you making $200 will be like this a day. And when you prove that you can make $200 for 20 days for next 3 months, making $500 will be like this. Yeah, I think we should do that. Okay. So, Naveed, why you still want me to do the paper trading or you want me to do the live trading now? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? 1 ਮਹੀਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ। 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲਾਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ। ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪਰ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਡੈਸ਼ ਟ੍ਰੇਡਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡੈਮੋ ਚੱਲਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁੱਤੇ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਪੀ ਤੇ ਮੈਕ ਐਡਰੈਸ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੇ, ਉਹ VPN ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ VPN ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। VPN ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਨਾ ਬ్రో, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸੋ 15 ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚੈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਤੇਰੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ।
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ 100 ਸਟਾਕ ਦਾ ਪਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਲ ਪਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਪਲੇ ਰੀਲ ਅਕਾਊਂਟ ਪਰ ਕਰੋ 50 ਸ਼ੇਅਰ 100 ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਅਮਾਉਂਟ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਫਸਟ ਕੋ $10,000 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ $10,000 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਜੇ 200 ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਕੀ ਮਾੜਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 1000 2000 3000 4000 ਖਰਾਬ ਵੀ ਕੀਤਾ। 200 ਨਹੀਂ ਨੇ $150 ਹੈ ਨਾ, $150 ਜ਼ਰਬੇ $450 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 450 ਬਣ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 100 ਵੀ ਬਣੇਗਾ, 200 ਵੀ ਬਣੇਗਾ, 500 ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ $1000 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ $50 ਬਣ ਜਾਏਗੇ जी $200 तक कोई मसला नहीं है। ये जगपाल भाई से पूछ लें, ये कर रहे हैं, काफी देर से मेरे साथ कर रहे हैं ये। यार भाई मैं कल बना ले सीगे $50 नहीं, कल 110 बना ले। मैं बात ये है कि आपका माइंड सेट कितना स्ट्रॉन्ग है। आप 500 ही बना सकते हैं। क्या आप इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप जो ट्रेड प्लान को फॉलो कर सकें? जो 3 महीने की मैंने टाइम लिमिट दिया ना, वो सिर्फ इसलिए दिया कि आप अपने माइंड को ट्रेन करें, आप अपने हाथ को ट्रेन करें, ठीक है, कि मैंने ट्रेड प्लान फॉलो करना है बस। भाई मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मुझे स्ट्रेटजी आती थी, लेकिन जो टूल है ना, कभी कभी आप कुछ करना और चाहते हो, टूल कुछ और कर देता है। जैसे आपने सेल करना है, 2 बार की दबा दी तो वो शॉर्ट में चला जाता है आपका शेयर। तो इसलिए आपका प्लेटफॉर्म आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। हाँ, अभी मुझे कुछ ड्रॉबैक्स थे जो पता चले हैं, जो मैं आगे वो मिस्टेक नहीं करूंगा। अगर वो मैं ईयर पे करता तो 1000-2000 का मेरा लॉस हो जाता। ठीक है जी, भाजी सब कुछ क्लियर है अभी तक, जहां तक अब तक हमने किया है जी जी जी। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੱਲੂ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੰਡੇ ਦੀ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। मंडे ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ 3 ਘੰਟੇ ਲੈ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ 3 ਘੰਟੇ ਮੰਡੇ 3 ਘੰਟੇ ਕਰਾਂ, ਮੰਡੇ ਫਿਰ 3 ਘੰਟੇ ਕਰੋ प्लीज। ओके मंडे 3 घंटे फिक्स, ठीक है जी, ठीक हो गया जी। इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे है, मुझे मिली नहीं। इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कल भेजी थी ना ग्रुप में, आई है कल ग्रुप में जाएगी 7 डे वाले आज कल की नहीं दे दी शाम तक। हाँ जी, कल कितनी देर होगी क्लास? कल 3 घंटे 4 घंटे तो होगी, 4 घंटे होगी क्लास में। चलो ठीक है। स्टूडेंट कम्युनिटी है नहीं, स्टूडेंट कम्युनिटी से सारे बंदे ने ना, 1 डे वाले भी है, 7 डे वाले भी है। वो मैं नया ग्रुप बनाया, मैं तो 7 डे वाले ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ 7 ਡੇਜ਼ ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। मैं 7 डेज है नहीं गा। ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਨਾਬ? नहीं क्योंकि ਤੁਸੀਂ रीनेम करता ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂ T402 रीनेम करता ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਨਦੀਪ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦਿਲਜੋਤ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ हेलो जनाब, आ गए ਤੁਸੀਂ, ठीक है जी, थैंक हाँ जी हाँ ठीक हो गया जी। ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਚ। ਮੈਂ किस दा, मेरा या जगपाल भाई दा? ਜਗਪਾਲ ਭਾਈ ਦਾ ਜੀ। हाँ जगपाल भाई जरूर जगपाल भाजी को